गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं। तू ठाकुर ऊंच भगवाना। जिह्वा एको कवण गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्हीं लहिए। बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लहिए। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर। सांझी वार्ता दे प्रतीक मनुखता दे रहबर दीन दुनी दे पातशाह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी साजी नवाजी गोद अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ। वडभागे ओ सतगुरु पातशाह जी दे चरण कमलों में सांझ पा रहे हो। सत्कारयोग भाई साहब पासों आप जी ने रब्बी बाणी का पाठ बड़े प्यार दे नाल श्रवण किया है। आओ समा गुरमत विचारां दा है। सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन पवित्र बाणी दी विचार नाल आपां मन करके जुड़ना करिए। विचारां आरंभ करन तो पहला सतगुर दी बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाइए। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु रब्बी बाणी अंदर कृपा करते हैं कि गुरु की प्राप्ति परमेश्वर की प्राप्ति केवल तन करके गुरु दे नाल रहिया गुरु दे कोल रहिया आपां उस अकाल पुरख की खुशी प्राप्त नहीं कर सकते या गुरु की रहमत साडे ते नहीं हो सकती जिन्ना चिर कि आपां मन करके गुरु दे नाल नहीं रहिंदे। जे मन करके आपां गुरु की बाणी नहीं पढ़ते मन करके सिमरन नहीं करते मन करके सेवा नहीं करते मन करके आपां कथा कीर्तन विच हाजरी नहीं लवाउंदे तां तन करके भावें कोई मनुख गुरु दे बहुत कोल होवे पर वो गुरु की खुशी हासिल नहीं कर सकता। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने नवाब दौलत खां अते काजी नूं सुल्तानपुर विखे यही गल समझाई सी कि जिहड़ा धर्म है वो तन का विषय नहीं वो मन का विषय है। जे अकाल पुरख परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सानू मन करके उसकी इबादत करनी पवेगी। तन करके कीते हुए धर्म के कर्म जिहड़े हन उहदे नाल मनुख नूं प्राप्ति नहीं होंदी। एक कर्म कांड बन के रह जाता है अते कर्म कांड इस तरह है जिवें कोई मनुख किसी दरखत के पत्तियां नूं पानी पाई जावे पर दरखत के मुढ़ जड़ां नूं पानी ना पावे। ऐसा दरख्त जिहड़ा है समा पा के सुक जाता है जिहदे पत्तियां नूं बैठ पानी पाई जाना। कर्म कांड इस तरह है साहब आप जी ने जिंदे विचों कुछ भी हासिल नहीं होता प्राप्ति नहीं होती
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਅਧੂਰ। ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜਾਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੁਖੈਨ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ
जितने भी रीति रिवाज ने इन्हां विच नहीं पैना चाहता। आखिर सतगुरु पातशाह जी ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह जी ने बुलाया ते बचन आखिया भी तुसी लाहौर विखे विआह कारजा विखे तुसी जाना है। सतगुरु पातशाह जी धन गुरु रामदास महाराज जी ने जी बचन आखे ते श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आखिया, कह लगे पिता जी ये तो बड़ी चंगी थां ते भेज रहे हो, खुशियां वाली थां ते भेज रहे हो, जे किते मैनू अपना आपा भी वारना पिया, जे ऐसी थां ते भी भेजोगे तो मैं उत्थे भी खुशी खुशी चले जावां। महाराज ने उठ के श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गलवकड़ी विच लिया ते बचन आखिया भी तुहाडे वर्गियां दी लाहौर नूं लोड़ है। जेड़े बाहर दी थोड़ी जी तपश नूं वेख के घबरा जाते ने, उन्होंने फिर तत्ती तवी ते की बैठना है। तो धन गुरु गुरु रामदास महाराज पातशाह जी ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी लाहौर विखे भेजिया। पर तुरन लग्या एक बचन आखिया भी चले गुरु दे हुक्म विच हो, आउणा भी गुरु दी आग्या नाल ही है, अपनी मर्जी नाल नहीं। गए विआह कारज संपूर्ण हो गए। लाहौर विखे कुछ समय टिकाणा किया, पर हिरदे विच गुरु दे दर्शनां दी तांग पैदा हो गई। ऐसी तांग पैदा हुई जिवें एक बगीचे दे अंदर शांति बूंद की तांग पैदा हो जाती है। ऐसी प्यास हिरदे विच लगी गुरु के दर्शनां दी, दीदारां दी। धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी नित गुरु के चरणों विच मनो अरदास करते हैं कि कदों गुरुदेव मैनू बुलाउण ते मैं कदों गुरु के दीदार करा, दर्शन करा। मन अंदरों बेचैन हो गया। सतगुरु पातशाह जी मानो रब्बी बाणी दे ये बचन उन्होंने हिरदे विचों निकल रहे सन बार बार कि हे मेरे सतगुरु, तुहाडे दर्शनां तो बिना इंज लगता है भी जिवें ये जीवन कलयुग नाल भर गया। तुहाडे दर्शन नहीं होंदे ते मानो इंज लगता है जिवें कलयुग आ गया। एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। हे मालक, अवस्था हालत ऐसी अंदर दी बन गई है भी तुसी घड़ी ना मिलो, भाव तुहाडे दीदार ना होण तां मानो जीवन दे विच कलयुग आ जाता है। जीवन विच कले कलेश दा समा शुरू हो जाता है। तां नित अरदास करते ने। इधरों बाबा पृथ्वी चंद दे मन विच एक भरम पैदा हो गया बई मैं ते गुरु दे नेड़े रहना हाँ, इस करके आने वाले समय विच गुरगद्दी की दात मैनू प्राप्त होगी, क्योंकि ज्यादा समा गुरु दे नाल मैं बतीत किया ते कर रहा हाँ। उधरों धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी नित अरदास करते ने कदों गुरु दीदार होण, कदों गुरु दे दर्शन होण। सतगुरु धन गुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी चिट्ठियां भी भेजते हैं, पर बाबा पृथ्वी चंद चिट्ठी गुरु तक नहीं पहुंचन देता, क्योंकि मन में इको ही विचार है भी जिन्ना हो सके मैं श्री गुरु अर्जन देव महाराज को दूर रखा, लाहौर में ही रह, मैं गुरु के नेड़े हाँ। ये भरम सी। हुण बाबा पृथ्वी चंद तन करके गुरु के कोल नहीं, पर मन करके कोल नहीं। पर दूसरे पासे गुरु अर्जन देव महाराज जी तन करके गुरु के कोल नहीं, पर मन करके गुरु कोल नहीं। ताई मेरे साहब आखते ने भी जेड़ा मन करके गुरु के कोल है भाई, उन्होंने ही गुरु की खुशी प्राप्त होनी, उन्होंने ही सतगुरु की प्राप्ति होनी। गुर सभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुरु तां मिले जा मन रहे हदूर। मन हाजिर है ते भावें कितना भी दूर मनुख बैठा होवे, पर मन करके गुरु चरना ना जुड़िया है। पर दूसरे पासे मनुख तन करके भावें बहुत नेड़े होवे, पर मन करके दूर होवे,
गुरु की खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। ये मन जो है गुरुदेव आखते ने परदेसी हो जाता है जदों ये अपने देश को भुल जाता है, जदों अपने मालक को भुल जाता है, ये मन फिर बेगाना हो जाता है। पर यही मन जदों परमात्मा नाल जुड़ जाता है, इनू अपने मूल की सोझी हो जाती है, फिर यही आप मुहारे कहन लगता है, मन तू जोत स्वरूप है गुरमती रंगमान, मन हर जी तेरे नाल है। गुरुदेव आखदे फिर एहसास हो जाता है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। तू गुरु की मत लैके उस प्यारे दे प्रेम रंग विच आनंद मान, क्यों तू उसे दी जोत है, उसे का ही रूप है। भाई गुरदास जी ने पवित्र कवित अंदर बड़ा प्यारा इस मन के प्रथायिक वचन उच्चारण किया, जेड़ा मन टिकता नहीं, जेड़ा मन चंचलताइयां करता है, जेड़ा मन सदा भटकता रहता है, उन्होंने 2-3 उदाहरण दित्तियां ने। भाई गुरदास जी आखदे ने जिस तरह एक पंछी आकाश दे विच नित उड़ारियां मारता है, ते वो पंछी जदों किसी शिकारी दे राही सुटे हुए जाल दे विच फस जाता है, ते वो शिकारी उस पंछी नूं फड़ के फिर पिंजरे विच बंद कर दिंदा है, तो फिर वो पंछी किते भी उड़न जोगा नहीं दिता, भाव उस शिकारी दे वस विच हो जाता है। ये मन पंछी दे न्याई है। गुरु शब्द की विचार का जाल जदों आपां इस मन ते वगावांगे, तो फिर ये मन भी साडे काबू विच आ जाएगा। गुरु शब्द नाम सिमरन के पिंजरे विच इहनूं बंद कर देवांगे, तो फिर ये मन मर्जी दियां उड़ारियां नहीं मारेगा। भाई गुरदास जी आखदे ने जैसे पंछी उड़त फिरत है आकाश जारी, जारी डार पिंजरी में राखित आन कै। जिवें एक पंछी आकाश दे विच उड़ारियां मारदा है, पर शिकारी जाल सुट के जदों उस पंछी नूं फड़ लैंदा है तो पिंजरे विच बंद कर दिंदा है, फिर वही पंछी जिहड़ा है फिर उड़ारियां नहीं मार सकदा, वस विच आ जाता है। दूसरी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दी है, कह लगे एक हाथियों का राजा जिहड़ा हाथी है वो जंगल दे विच मस्तिया होया फिरदा है, मन मर्जियां करता है, पर वही जदों हाथी किसी महावत के अधीन हो जाता है तो वह महावत अपने कुंडे के अधीन करके उस हाथी नूं वस विच कर लैंदा है, जिहड़ा बड़ा ही ताकतवर ते बलवान है, जिहड़ा बहुत ही ताकतवर है, वस विच नहीं होने वाला, पर महावत के कुंडे के अधीन हो जाता है। जैसे गजराज कह लगे, गजराज कहते ने हाथियों के राजे नूं, ते वो असल दे विच जंगल दे विच मस्तिया होया। जैसे गजराज गैबर बन में मदून कह लगे असल दे विच जंगल दे विच मस्त होया, बस आवे महावत है अंकुशे मान के कह लगे वो हाथी महावत के कुंडे के अधीन हो जाता है तो वस विच आ जाता है। बहुत ताकतवर बहुत बलवान है हाथी, जेड़ा किसी दी वस विच नहीं आउंदा, काबू विच नहीं आउंदा, एक महावत उन्होंने कुंडे के अधीन कर लेता है। तीसरी उदाहरण देते ने कह लगे एक सप जिहड़ा है बड़ा ही जहरीला है, पर कोई जदों बड़ी ही विंगी टेढ़ी बिल दे विच खुड दे विच वड़ जाता है तो एक चंगा सपेरा जिहड़ा है बंगाली बीड़ दे राही उन्होंने कील के मंत्रा दे राही अपने वस विच कर लेता है। जैसे बिखिया तार बिख बिल में कह लगे जिवें एक जहरीला सप जदों वो बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी बिखम बिल दे विच खुड दे विच वड़ जाता है। जैसे बिखिया तार बिखम बिल में कह लगे जिवें भयानक सप
एक बिल दे विच अंदर चला जाता है, बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी है, पर एक सियाणा सपेरा साप हेरा गहे ताहे मंत्रन की कानक है, वो बीड़ वजा के ते वो मंत्रां दे राही उस बिखम बिल विच वड़े हुए सप नूं बाहर कढ लैंदा है। इसी तरह ही ये मन है, ये बड़ा ही चंचल है ते तिन्ना ही भवना दे विच छिंड दे विच घुम के आ जाता है। इहदी रफ्तार बहुत तेज है, एक थां ते ना टिकण वाला ये मन गुरु ज्ञान दे राही वस विच आ जाता है, काबू विच आ जाता है। तैसे त्रिभवन प्रत भ्रमत चंचल चित निचल ओत मत सतगुरु ज्ञान कह, जेड़ा किसी दे काबू विच आउण वाला नहीं ये मन, पर गुरु दे ज्ञान राही ये मन भी काबू विच आ जाता है। महाराज ने तो इथों तक बाणी विच आखे है भी वो सूरमे ने जेड़े इस मन नूं असल दे विच काबू विच करन दा यतन करदे ने, जेड़े यतन करते हैं भी ये मन नूं वस विच करना है, तो फिर वो इस मन दे नाल लड़ते ने, एक संघर्ष जिहड़ा है मन दे नाल करते ने, ते ये ना वस विच आउण वाले मन नूं काबू विच कर लेंदे ने। कदी धन गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज पातशाह जी दे चरनां दे विच साईं मियां मीर जी ने आके मत्था टेकिया, ते मेरे साहिब ने उत्थे पुछया, कहण लगे साईं जी मन का की हाल है, ते अगों हथ जोड़ के आख्या गुरुदेव तुहाडे दर्शन हो गए ने, तुसी कृपा कीती है, हुण ये टिकिया होना चाहिए है, तुहाडी कृपा राही ये टिक ही गया। सानू भी जदों कोई सज्जण मिले ते गुरुदेव पिता दे जिवें पावन बचन साईं मियां मीर जी नूं आखे मन का की हाल है, सानू भी ये पूछना चाहिए है मन का की हाल है, सिखी का की हाल है। सतगुर पातशाह जी सानू बड़ी प्यारी सिक्ख्या देते ने। गुरुदेव कहते भी ये मन जिथे चंचल है, ये चतुराइयां करता है, ये मन जिथे भटकता है, तू गुरु की संगत विच आ, गुरु के चरणों विच आ, ते गुरु कृपा करेगा, इस भटकते हुए मन नूं तेरे अंदर ही टिका बख्शेगा। ये मन इस तरह है जिवें एक बच्चा वेखो पहला जन्म हुंदा है, ते फिर वो बच्चा बैठता है, फिर वो रिढ़दा है, फिर पैरों ते तुरदा है, फिर वो बच्चा सहजे सहजे दौड़दा है। पर मन की हालत बिल्कुल इस तो उल्ट है। ये मन पहला दौड़दा है, फिर हौली हौली ये तुरदा है, फिर ये मन रिढ़दा है, फिर ये मन बैठता है, फिर इस मन का जन्म होता है। सतगुरु पातशाह जी आखते ने ये मन दुनिया के अंदर हर एक मनुख दे कोल है, ते हर एक मनुख वेखण विच आउंदा है, वो घर तां बदलदा है, शहर नगर भी बदल लैंदा है, मनुख तन के कपड़े बदल लेता है, नाम बदल लेता है, रहन का ठिकाना बदल लेता है, पर अपने मन को नहीं बदलता। जेड़े मनुख अपने मन को बदल लेते हैं, वही असल दे विच इस मन को चित लेते हैं। जेड़े ज्ञानवान पुरुष ने सहबाब दे ज्ञानियों का धर्म है कि कह लगे ज्ञानियों का यह धर्म है कि वो अपने मन को सदा ही अपने वस विच कर लेते हैं। सच लाए ध्याना वो सदा ही सच्चे दे चरणों विच अपना ध्यान जोड़ के रखते हैं। गुर प्रसादी जिन्हें मन जीतिया जग तिने जिताना, गुरु की कृपा राही जिन्हों ने इस मन को जित लिया, जेड़ा ना जितिया जाण वाला है। बस जिन्हों ने मन को जितिया, मन को काबू कर लिया, वो इस जगत को जित लेंदे हैं। गुरुदेव पिता कृपा करन, बख्शिश करन, साडा एक भटकिया होया मन, विकारी मन, एक कपटी मन, एक छल करने वाला मन जिहड़ा है, जिहड़ा सदा ही सानू गुरु की विचार तो, नाम सिमरन तो, कथा कीर्तन सत्संग तो दूर लैके जाता है,
गुरु इहदे ते अपार किरपा करे, इस भटके हुए मन नूं टिका बख्शे ते साडा मन भी सत संगत विच बैठ के प्यारे की सिफत करे, उहदे सिफत सलाह विचार नूं सुने ते मालक दे चरनां नाल जुड़ के उहदा रूप होवे। बस ये गुरु चरनां विच अरदास करिए, सतगुरु जदों तुहाडे कोल बैठीए ये मन भी तुहाडे कोल बैठे, जदों आपां कथा कीर्तन सुनिए ये मन भी सुने, जदों आपां बाणी पढ़ीए मन भी बाणी नूं पढ़े, जदों आपां गुरबाणी नूं सुनिए साडा मन बाणी नूं सुने। सत संगत विच बैठ के ये मन जिहड़ा है बाहर ना जावे, बल्कि ये तुहाडे चरनां विच जुड़ जावे, तां जो गुरुदेव दे पावन बचनां दी आपां विचार कीती है। गुर सभा एव ना पाइए, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जां मन रहे हदूर। मन हाजिर है तां गुरु दे पावन बचनां विच जुड़िया है, तां भाई मन गुरु की खुशी हासिल करेगा, मालिक की प्राप्ति करेगा। नहीं तो गुरु के कोल तन करके बैठे हाँ, गुरु की खुशी हासिल नहीं होगी। महाराज सारिਆਂ ते कृपा करन, असीं मन करके गुरु नाल जुड़ सकीए। ये गुरु चरनां विच अरदास करिए। विचारां करदे आ बेअंत भुलां होईयां बख्श लैणीਆਂ। प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।